Hello and welcome all the IELTS aspirants. Today we will learn from the newspaper cuttings how we can prepare for our IELTS writing section. Here you can see in the first section, in the first article, that it is written yellow metal. Yellow metal, what is yellow metal? Yellow metal here is denoted as gold. The synonym of gold, they have used yellow metal. Why? Because it makes the heading of the article very attractive. That's why we have to use synonyms in our IELTS writing. That's why we are suggested to use as many synonyms, as many attractive words in our articles, but yet they should be formal. Okay, so here we can see that in the first line only there is written jumped. Jumped itna to itna rupees. We do not have to focus much on the digits and the data. We have to pick up the words and vocabulary and format which will be helpful in our writing. Okay, so first here it is written jumped. Jumped means एकदम से increase किया इतने से इतने rupees में. Okay, so for the word increase we have used the synonym jumped. Okay, then moving forward we see that silver price is also surged itna to itna rupees. ठीक है, we do not have to focus on the data at all. We have to pick up the word surged, surged. So also surged, we were talking about gold here and we are talking about silver, and both are surging, both are increasing, so we have used also. Increase की जगह पे हमने क्या यूज किया है? We have used the word surged. Okay, then the yellow metal, and then आगे हम बढ़ेंगे. It is written gaining, G-A-I-N-I-N-G, gaining. It is also used as the synonym of increase, that it has gained with strong international prices, means it has increased. Okay, so by far we have seen that they have never used the word increase because it is a very basic word. We have used all the synonyms of increase. Okay, so that is how we have to present our data whenever we are given such kind of bar graphs or table charts or anything. We have to use not the basic words but these kind of words. What you have to do is make list of these kinds of words. I'm using Hindi to explain you things and English also, so that you can have trust on me. Okay, आगे देखते हैं. That rally in global gold prices pushed spot prices higher. Pushed prices higher. ठीक है, स्पॉट आप इसमें नेग्लेक्ट करोगे बिकॉज यहाँ पे स्पेसिफिकली इन चार्ट्स की बात हो रही है. पुश्ड प्राइसेस हायर, हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसमें प्राइसेस एकदम से पुश होते हैं. सब यहाँ देख लो, यहाँ से यहाँ एकदम पुश हो रहा है. ठीक है, यहाँ से यहाँ एकदम पुश हो रहा है, यहाँ से यहाँ पुश हो रहा है नहीं, स्लाइट चेंज. यहाँ से यहाँ कोई चेंज, स्लाइट चेंज, नेग्लिजिबल चेंज. यहाँ से यहाँ पुश्ड द प्राइसेस, यहाँ से यहाँ पुश द प्राइसेस, यहाँ से यहाँ पुश द प्राइसेस. तीनों के लिए एक जैसे तो यूज करेंगे नहीं. ड्रामेटिक इंक्रीज, इंक्रीज्ड एक्सेप्शनली. ठीक है, इस तरीके के वर्ड्स यू हैव टू यूज इन आइल्स राइटिंग टास्क फर्स्ट. सो हियर वी हैव लर्न्ड पुश्ड हायर. पुश्ड हायर इज ऑल्सो सिनोनिम ऑफ इंक्रीज, आगे बढ़ा. पुश्ड हायर नॉट ओनली इन बार ग्राफ, आप किसी भी तरीके के में देख सकते हैं. जैसे यहाँ देख लीजिए, 37 से 50 गया, पुश्ड हायर. 17 से 37 हुआ, डबल हो गया, इट डबल्ड. इंक्रीज्ड एक्सपोनेंशियली, धीरे धीरे इंक्रीज करते जा रहे हैं ना, इंक्रीज्ड एक्सपोनेंशियली. ओके, चलो आगे देखते हैं. आगे एक और ये आर्टिकल है, यहां से हम क्या देख रहे हैं? क्लॉड बैक. क्लॉड बैक का मतलब इट पुश्ड इट बैक, डिक्रीज्ड. ओके, फॉलिंग स्प्री. फॉलिंग स्प्री इज ऑल्सो सिनोनिम ऑफ डिक्रीज. Decline, D-E-C-L-I-N-E, decline. It is also synonym of decrease. They have used decrease word? No. They have used all the synonyms to make their writing attractive, and that is what IELTS is expecting from you, to write the same word with different variety of appropriate vocabulary. You are writing decrease everywhere. No, you have to use appropriate vocabulary. Decline, decrease होना. ठीक है, आगे देखते हैं. Starting off. Okay, starting off. It is, आप देख रहे हो पैराग्राफ चेंज हो रहा है, एंड इन दिस बिगिनिंग दे हैव यूज्ड स्टार्टिंग ऑफ. सो ऑल्सो यू कैन ऑल्सो इन राइटिंग टास्क 2, माइंड इट, इन राइटिंग टास्क 2 आप स्टार्टिंग ऑफ से अपना राइटिंग BP2 स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है, आप अपना BP2 बॉडी पैराग्राफ 2 स्टार्टिंग ऑफ से स्टार्ट कर सकते हो. ओनली एंड ओनली इफ आपका राइटिंग टास्क उस तरीके का होना चाहिए. ठीक है, किसी किसी जगह पे. फिर आप देख रहे हैं गेन्ड स्ट्रेंथ. बैरोमीटर गेन्ड स्ट्रेंथ मतलब उसमें स्ट्रेंथ है, मतलब वो इंक्रीज हुआ. ठीक है, तो गेन्ड स्ट्रेंथ इज ऑल्सो अ सिनोनिम ऑफ इंक्रीज्ड. टच अ हाई ऑफ दिस. ओके, सो दिस मस्ट बी द हाईएस्ट डाटा आउट ऑफ द ऑल गिवन डाटा, दैट इज वाई दे हैव यूज्ड टच अ हाई ऑफ. इतना ऊंचा छलांग मारी. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जो भी हमारा डाटा था, जो भी चीज थी,
प्राइस थी या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे या कुछ भी था, कोई भी ट्रेंड था, अनएम्प्लॉयमेंट था, कोई भी नंबर था, उसने छलांग मार के वो यहाँ तक पहुंच गया। ठीक है, तो जो भी आपका हम यूज करते हैं, पीक वर्ड यूज करते हैं ना, जो भी डाटा हमारा हाईएस्ट होता है, जैसे इसमें देख लीजिए ये डाटा हाईएस्ट है, तो इट टच्ड द पीक ऑफ 16.2। ठीक है, तो आप यू कैन यूज सच काइंड ऑफ फ्रेजेस। इसको हम क्रैमिंग अप नहीं बोल सकते, क्योंकि आप इसमें अपना डाटा जो भी वहां से गिवन होगा उसको आप यूज करोगे, बट यू आर यूजिंग सच फ्रेजेस ओनली। ठीक है, तो इसकी वजह से आपको बहुत अच्छे से बैंड्स आप हायर स्कोर करने में आपको पॉसिबल होगा। द इंडेक्स फाइनली सेटल्ड एट, जो भी इंडेक्स है या जो भी डाटा है, जो भी टैली है, द डाटा, द टैली, द डिजिट्स, इंडेक्स की जगह आप यूज कर सकते हैं द डाटा, द टैली, द डिजिट्स फाइनली सेटल्ड एट अ क्लॉकिंग गेन ऑफ दिस। ठीक है, आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि जो फाइनली जो डाटा है वो इतने पे जाके रुक गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं द फाइनली the data, finally the digits finally settled at 16.2 number of travelers with a clocking gain of 16.2 minus 11.7, that is roughly 4 point something, with a clocking gain of 4 point something, whatever ये क्या है, मिलियंस में दिया है शायद डाटा। ओके, सो क्लॉकिंग गेन ऑफ, गेन मतलब इंक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है, तो आप इसमें से माइनस कर दोगे, इतना इंक्रीज होके यहाँ पे वो सेटल हो गया। 4.7 4 पॉइंट समथिंग इंक्रीज होके यहाँ तक ये सेटल हो गया। इस तरीके से आपके जो बनते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस फॉर्म होते हैं। लाइकवाइज ये बहुत अच्छा कनेक्टर भी है, और आपका बॉडी पैराग्राफ को स्टार्ट करने की स्टार्टिंग लाइन फॉर्मेट जिसको आप कहते हो वो भी हो सकता है। ठीक है, अगर आपका ये वाला बॉडी पैराग्राफ भी इसी वाले बॉडी पैराग्राफ की तरह सेम डायरेक्शन में जा रहा है, अगर आपने इसमें पॉजिटिव्स बताया है, इसमें पॉजिटिव्स बताने वाले हो, तो यू कैन स्टार्ट द बॉडी पैराग्राफ विद द वर्ड लाइकवाइज एंड माइंडेड। आफ्टर यूजिंग लाइकवाइज यू हैव टू यूज कॉमा। ओके, इसके बाद आप देख रहे हो शॉर्ट अप। शॉर्ट अप का मतलब भी होता है इंक्रीज करना। ठीक है, इंक्रीज हुआ। आगे देखते हैं द इंडस्ट्रीज स्पर्टेड 2.6 अकाउंटिंग फॉर मेजॉरिटी ऑफ सेंसेक्स गेन्स। स्पर्टेड also means gains. Okay, increase. Other winners included rising up. Rising up is also a synonym of increase, that it rose up to 2.8%. आगे देखते हैं on the other hand, whatever we were talking about in this and this body paragraph, now we are taking this to the another side on the other hand. On the other hand हम कब यूज करते हैं, जब अभी तक हम जिस डायरेक्शन में बात करते आ रहे थे, अब हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में बात करने वाले हैं। देयर इज अ कॉन्ट्रास्ट इन आवर writing, so we can use on the other hand, but mind it, we have to use comma after using on the other hand. ठीक है, shed up to का मतलब क्या हुआ, shed का मतलब क्या होता है, झाड़ देना। ठीक है, जैसे डॉग अगर आपके पास पेट होगा तो पेट क्या करते हैं, शेडिंग करता है, या फिर उसका जब फर गिरता है, उसका रुआ जो गिरता है, दैट इज शेडिंग। ठीक है, तो शेड अप टू मतलब इसको झाड़ देना। मतलब यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हुआ, इट डिक्रीज। अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे, इंक्रीज की, सोड, हाई, गेन, बट अब हम राइज अप। बट अब ऑन द अदर हैंड दूसरे हाथ पे हमने देखा कि दूसरी वाली जो कंपनी है, इट शेड अप टू व्हाटएवर। ठीक है, तो शेड अप टू या शेड का मतलब क्या हुआ, ये एक डिक्रीज के सिनोनियम की तरह यूज हुआ है। आगे देखते हैं on the global front. It is a very nice phrase to depict the global scenario. अगर आप किसी भी चीज के बारे में इंटरनेशनली या ऑन द ग्लोबल लेवल, ऑन द वर्ल्डली लेवल यूज करना चाहते हो, तो यू कैन स्टार्ट ऑफ विद द फ्रेज ऑन द ग्लोबल फ्रंट. इट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव एंड दे हैव यूज्ड, अब देखो कितनी देर बाद दे हैव यूज्ड द वर्ड डिक्रीज. ठीक है, वाई, बहुत सारे इन्होंने सिनोनिम्स यूज कर लिए, सो नाउ दे हैव यूज्ड द वर्ड डिक्रीज. ओके, सो इस वाले में से इतना ही सीखने को था. आगे देखते हैं डिटेक्टेड, DETECTED, यहाँ पे लिखा है डिटेक्टेड. हम देखते हैं, हम यूज करते हैं इट शोज, इट डिपिक्ट्स, इट इन्यूमरेट्स, इस तरीके से ना. जैसे जो भी हमें बारग्राफ दिया है, द बारग्राफ इन्यूमरेट्स, द बारग्राफ शोज. वी कैन यूज वन मोर वर्ड हेयर, वी कैन यूज द बारग्राफ या जो भी आपको दिया है, द चार्ट. डिटेक्टेड मतलब इससे हमें पता चलता है, इससे हमें जांच या दिखती है ये चीज. ठीक है, आगे देखते हैं एक्टिंग ऑन अ टिप ऑफ. एक्टिंग ऑन अ टिप ऑफ का मतलब
इस बात पे काम करते हुए. It is also a nice phrase to use in any writing task, right? One or two. Next is this one. This is my personal favorite to start our body paragraph with notably. It is a very nice आप कह सकते हैं फॉर्मेट आप लोग कहते हैं. नोटेबली के बाद माइंडेड यू हैव टू यूज कॉमा. ओके, तो जो भी आपका कॉन्ट्रास्टिंग फीचर होता है नॉर्मली बच्चे यूज करते हैं अनदर रिमार्केबल फीचर इज दैट. नो, आई थिंक अ बेटर फॉर्म ऑफ द बेटर फॉर्मेट एज यू कैन से कुड बी नोटेबली. इसके बाद आप कोई भी जो मेन एक फीचर है, जो एक दिख रहा फीचर है, जो इंपॉर्टेंट फीचर आपको दिख रहा है चार्ट में, वो आप मेंशन कर सकते हो. ओके, सो व्हाट आई लाइक टू यूज, how I like to use this one is in writing task 1. Writing task 1 में because it seems more formal kind of word. Okay, we can definitely use this in writing task 2 also, but I like to use, personally I like to use this in writing task 1 in the place of and where we use another remarkable feature is that. Okay, next देखते हैं. Look how we have used the connector. However, here I have just taken a bit of cuttings from newspaper and I want to show how we use however. However कहाँ use करते हैं? It is a contrasting connector. Contrasting connector मतलब यहाँ पे जो बात हो रही होगी, अब उसके बाद इस बॉडी पैराग्राफ में उससे अपोजिट हम बात करने वाले हैं. सो वी कैन स्टार्ट ऑफ आवर सेंटेंस आवर पैराग्राफ विथ however and minded. After using however, as it is a connector, we have to use कॉमा आफ्टर इट. हमें उसके बाद कॉमा का यूज करना होता है. आगे बढ़ते हैं कुछ इसी तरीके कनेक्टर्स में. देखिए यहाँ पे भी मैंने एक छोटी सी कटिंग ली है. इस बॉडी पैराग्राफ में कुछ और बात हुई है, इस बॉडी पैराग्राफ में सेम बात हुई है, लेकिन उससे एक इम्पॉर्टेंट फीचर हम शो करने वाले हैं. तो जस्ट एज नोटेबली हम यूज करते हैं, वैसे ही टेकिंग नोट ऑफ आगे हम अपने जो भी हमें गिवन है चार्ट, उसमें से जो भी इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जोड़ सकते हैं. तो इसको भी आप एक फॉर्मेट ही कह सकते हो कि बॉडी पैराग्राफ स्टार्ट करने का भी ये तरीका है. टेकिंग नोट ऑफ द गिवन फिगर्स, गिवन डाटा, वी कैन सी दैट, वी कैन इट इज डिपिक्टेड दैट, जो भी ठीक है. वी कैन कंटिन्यू इसके आगे. टेकिंग नोट ऑफ द, इट इज ऑल्सो अ वेरी नाइस फॉर्म ऑफ फॉर्मेट. आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होगे, आप देखते होगे एमिट्स बहुत ज़्यादा यूज होता है. एमिट्स, एस इज साइलेंट हेयर. ओके, सो यहाँ ये एमिट्स का मतलब क्या होता है? इट मीन्स दैट इन सब के बीच में, ठीक है, इन सब के बीच में. तो वट एवर द फिगर्स इज गिवन, यू आर लाइक इन कंक्लूजन यू कैन यूज कि इन सब के बीच में वी कैन सी दैट देयर वाज अ सर्ज इन दीज ईयर्स, और ओवरऑल ट्रेंड हमें ये दिखा इन सब के बीच में. तो एमिट्स किसके लिए यूज कर सकते हैं? इन सब के बीच में. नेक्स्ट देखते हैं फर्दरमोर. फर्दरमोर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, बट फर्दरमोर को सही तरीके से यूज़ करने का तरीका क्या है? जो आपकी अभी तक बात करते आ रहे हो, सेम बात ही आप उसी में एक और बात ऐड कर रहे हो, तो आप फर्दरमोर यूज़ करते हो. फर्दरमोर किस तरीके का कनेक्टर है? फर्दरमोर है एक एडिटिव कनेक्टर, ठीक है. ऐड कर रहे हो आप एक बात में दूसरी बात को, प्लस आपको फर्दरमोर यूज़ करते हुए एक चीज़ का ध्यान देना है दैट यू हैव टू यूज़ कॉमा आफ्टर इट. माइंडेड ग्रामेटिकल रिसोर्स जो आपका एक क्राइटेरिया है राइटिंग को चेक करने का, उसमें ये सारी चीज़ें चेक होती हैं दैट वेदर यू हैव यूज्ड कॉमा आफ्टर कनेक्टर्स और नॉट, योर स्पेलिंग्स आर राइट और नॉट, योर grammatical range, your formation of sentences is correct or not, whether you have used complex sentences or not. So while using connector like furthermore, you have to use comma after it. Okay, also after however को use करने के बाद भी, notably को use करने के बाद भी, you have to use comma. It is mandatory. अगला देखो, ये notably और भी बहुत जगह if you will read newspaper you will find this notably and this ये जो भी चीज़ें आपकी important feature होते हैं, description होता है, it is mentioned after it. So notably comma and this. It is a very nice way starting off your writing body paragraph. What we say is body paragraph. देखिए आपको वैसे कोई बताएगा start with notably, you won't believe. Look, here's the proof. These are the cuttings from newspapers. Okay, so you can see that they use it. It is obviously formal. They are using formal language. Next देखो, किसी बात में कि कोई एक आपने बॉडी पैराग्राफ कंप्लीट कर लिया, आप दूसरा बॉडी पैराग्राफ भी आप उसी के सपोर्ट में ऐड करने जा रहे हो विद सेम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. यू कैन स्टार्ट ऑफ विद ऑल्सो. ऑल्सो इज ऑल्सो एडिटिव कनेक्टर. एडिटिव कनेक्टर मतलब हम एक बात में दूसरी बात को ऐड कर रहे हैं. सो यू कैन यूज ऑल्सो एंड यू हैव टू यूज comma after it as it is a connector. Remember it, mind it, after using the connector you have to use a comma.
लुक फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं, हम कहा जाता है हमें कि आप एग्जाम्पल्स लिखा करो अपने राइटिंग टास्क में. तो इंस्टेंस, इंस्टेड ऑफ राइटिंग एग्जाम्पल you can use the word instance, 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 for instance, comma, and then you can write the connector. Also there is one more format of giving an example, that is write take comma and then write your whole example, then again write comma, and then in the end write for instance. To learn all these kind of formats, I will make more videos. This is my first video for IELTS, so I'm kind of hesitating, so please pardon that. Look, these kind of charts, or we can say descriptive pictorial data, is published in our newspapers also. So in this lockdown, I want you all to take reference of the newspapers, all these kind of pictorial datas, graphs and such table charts, and use these and these kind of words to prepare for your IELTS writing. If you have learnt even a bit, अगर आपने इस वीडियो में से कुछ भी सीखा है, तो please make sure to like the video and please subscribe to the channel, and I'll make better videos from the next time. Thank you.